हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। Measures to the establish of good governance. There is a most important topic around measuring to the establish a good governance. One can draw a long list of the measuring to the realize the goal of good governance. Let us discuss two measuring view or ensure to the people's participations and the use of computer and information technology. For absent in the effective, the honest, transparent, and the law-binding system of governance. The first year point of people a participation for the good governance. The people as a participation is a good increasing priority in their schemes of governance. It is recognized that a people is involvement in a discussion making and decision implementations would be act as a following here: a check on indifference and insufficient bureaucracy. In other words, people could act a pressure on the administration to act in a time. And second here, instrument for the responsible for the accountable administration. And the next year, medium of development, administration and self-government. And next year, a mobilizer and user of local service for local development. The people can perform this role either by the incomings, a member of any social organizations, or interest and pressure group or welfare or organization or the political party, or by the becoming a part of bureaucracy and government as a national, regional and local level. The government are seeking to involve people by the democratic is a decentralization. The panchayats and the municipalities are the association by advisor to the is a constitutives, communities and institution. People also organize to themselves to demand a policy to meet the expansions of citizens. And they organize a group to support a people-friendly decision of the government, as they also propose anti-people measuring taken by its. One can the mention of the name of organization like Narmada Bachao Andolan, Bachpan Bachao Andolan, People Innovatives and others. They help the end of India common case of Shiksha Bachao Andolan, etc. In the contents, the people thus can play a significant role of opinion maker both of favor and against the government and the administration. At the time, individuals tend to the work for the resolution of the conflicts within their society or between to the society and state. At the time, individuals tend to the work of the resolution of conflicts within the society or between to society and their state. Individual can also act or link between the people and bureaucracy by supplying the information about the action and reaction of there is a people, and there is the most important people are their role. And by such a feedback, their civil servant can be reminded by situation. Since the level of education, information, knowledge of government, political and economics, status, condition, people, participation, a large number of local people remain outside their system of governance. Therefore, our country has made a deliberate attempt to include the poorest section in the process of decision making and development. The reservation of 33.3% seat for women in the Panchayati Raj and the urban local government is one such a step. There is a provision for the reservation of seat for the SC and ST quota in the proportion by the population in the area of local government. For instance, if there is 20% of scheduled caste in a district, then a 20% seat shall be reserved for them in the Jila Parishad. Similarly, if the number of scheduled tribes is 1% in a village, then 1% seat shall be reserved for the scheduled tribes in the Gram Panchayat. Reservation for the backward classes has been to the left to the state government. It may be not be wrong, however, to state there is still a gap between what is provided and what is implemented in the area of people is a participation in governance, especially in the local government. It's only a handful of people who is appeared to be empowered. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है सुशासन स्थापित करने के उपाय। देखिए, सुशासन स्थापित करने के क्या उपाय हो सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेक उपाय बता सकते हैं। आइए हम दो उपायों की चर्चा करें, जैसे कि लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करना तथा एक समक्ष प्रभावशाली, ईमानदारी, पारदर्शी तथा कानूनों की पालन करने वाली शासन व्यवस्था के लिए कंप्यूटर एवं तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। यहाँ पर अगर पहली बात देखा जाए तो सुशासन के लिए जो है लोगों की सहभागिता। देखिए, सरकार स्वयं सब कुछ नहीं कर सकती है जब तक जनता की यहाँ पर भागीदारी न सुनिश्चित किया जाए। शासन व्यवस्था के लोगों की सहभागिता को प्राथमिकता दी जा रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी लोगों की प्रशासनिक सहभागिता के क्षेत्र में विशेषकर स्थानीय सरकार के स्तर पर जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है और जिसका क्रियान्वयन किया जाना है, दोनों में कभी अंतर देखने को मिला है। यह मुट्ठी भर लोगों के हाथ में शक्ति देने भर रह गया है। आज देखोगे तो एक ही व्यक्ति जीतता है, एक ही व्यक्ति शासन करता है, एक ही व्यक्ति शासन चला रहा होता है। कहते हैं न हम नए विचारधारा को लाते हैं, नहीं हम नई विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं। आप देखोगे कि कुछ क्षेत्र में जो बंद व्यक्ति लालच की पटारा फोड़ते हैं, उनको ही सब वोट देते हैं। तो ये सरकार की गलती नहीं है, जनता की इसमें गलती रहती है कि जनता सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं जनता को उन व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो उनके हित के बारे में सोचे। तो यही बात यहाँ दर्शाता कि मुट्ठी भर लोगों के हाथों में शक्ति देने भर रह गया है। यह देखा गया है कि निर्णय लेने और उनके अनुपालन में लोगों की सहभागिता निम्नलिखित चीज़ों से सुव्यवस्थित हो रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि उदासीन एवं सक्षम अफसरशाही पर रोक। दूसरे शब्दों में लोगों की सहभागिता को प्रशासन के स्तर पर दबाव बनाया जा सकता है कि अफसर कार्य करे और समय पर करे। आपने देखा होगा कि सरकारी ऑफिस में तो काम होता ही नहीं है, आए दिन आपको बातों को टाला जाता है। जो काम एक दिन में होना चाहिए उसको 50 दिन लगा देते हैं। तो इसका लापरवाही किसको माना जाए? क्या सरकारी तंत्र को माना जाए या सरकार को माना जाए या सरकार के जो है बहुत छोटी रवैया को माना जाए? कहते हैं अगर सरकार एक बार किसी अपने दफ्तर में चली जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया ये कि जो है अपने क्षेत्र में, अपने जो विभाग में है मंत्री जी प्रस्थान किए है, वहाँ पर जो है कर्मचारियों सुध लिए है। आखिर इस बात की ब्रेकिंग न्यूज़ किस बात की? जब आपकी विभाग है, आपको कार्य करना था वहाँ पर आपको लोगों को सुध लेना था, तो आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों बना देते हो या जाते क्यों अमावस्या पूर्णिमा? तो ये बहुत बड़ी सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। कहते हैं जब मालिक ही नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होगा वो कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी शासन सहभागिता के लिए। जवाबदेह एक उत्तरदायित्व शासन के तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। अगली बात यही आती है कि स्वशासन और विकासात्मक प्रशासन के माध्यम के रूप में, यानी स्वशासन और विकासात्मक शासन के मध्य क्या हो सकता है? स्थानीय विकास हेतु स्थानीय संसाधनों को खोजना एवं उनका उपयोग करना और लोगों को सिखाना ये भी अनिवार्य बना देता है। लोगों की भूमिका या तो किसी से सामाजिक संगठन का सदस्य के रूप में हो या हित और दबाव समूह अथवा कल्याणकारी संगठनों अथवा किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में अथवा अफसरशाही और राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्थानीय सरकार का भाग बन कर हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर देश में आप अच्छा से अच्छा करना चाहते हो तो जॉब की उपलब्धता आपको कराना पड़ेगा और जितना हो सके कीमतों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जो है अच्छा सरकार भी चल सकती है और यहाँ पर किसी प्रकार की जो है तकलीफ भी नहीं होगी जनता को। सरकार चाहती है कि लोगों का योगदान लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत और नगर पंचायत स्तर पर अथवा पारदर्शी एवं सलाहकार समितियों और संस्थाओं में शामिल करके हो। नागरिकों की अपेक्षा की पूरी करने के लिए लोग स्वयं संगठित होकर नीतियों की मांग कर सकते हैं। वो समूहों के रूप में संगठित होकर सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करें, जैसे कि वो खराब नीतियों के विरोध में एकत्र होते हैं। इसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, पीपल्स इन्फ्लुएंसेड हेल्प एंड जो है शिक्षा बचाओ आंदोलन इत्यादि संगठन सम्मिलित है। कहते हैं इस परिक्षेप में लोग सरकार का एवं संगठन के पक्ष पर विपक्ष में विचार विनिमय की भूमिका भी निभा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप जो है सरकार के प्रति हर बातों को समर्थन या उसको नकार भी सकती है। इस प्रकार लोग शासन से प्रशासन के विवाद हल करने के कार्य कर सकती है एवं लोग एवं अफसरशाही के बीच सेतु का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा, सूचना, सरकार की जानकारी तथा राजनीतिक आर्थिक सुविधाओं के स्तर पर लोगों की सहभागिता को निश्चित करना अत्यंत जरूरी है। इससे स्थानीय लोगों में से अधिकांश शासन व्यवस्था को बाहर रहते हैं। अंततः हमारी सरकार के विकास और नीति निर्माण में गरीब वर्गों को जोड़ने का सदैव प्रयास किया गया है। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए जो है 33.3% का आरक्षण इस प्रकार एक बहुत बड़ा कदम देखा जा सकता है। स्थानीय सरकारों में सुनिश्चित जातियों के अथवा अनुसूचित जातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी जिले में 20% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं तो जिला परिषद में उसके लिए 20% स्थान आरक्षित होंगे।
इसी प्रकार यदि किसी गांव में 1% अनुसूचित जातियों के लोग रहते हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत में 1% आरक्षण प्राप्त होगा। कहते हैं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को राज्य सरकार छोड़ दिया गया है और यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी सरकार की कथनी और करनी में बहुत ही अंतर देखने को मिल रहा है। और यही बात शासन और स्थानीय शासन में जनता की सहभागिता के मामले में भी सच है। कहते हैं बहुत बातें जो होती सिर्फ किताबी बातें होती है या सिर्फ लिखी हुई होती है, लेकिन इसमें बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। केवल मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सशक्त बनाया गया है। आप देखोगे भी तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही है, चंद लोग हैं जिनको काफ़ी सशक्त बनाया गया है। सबको सशक्त बनाने की सरकार भी कदम नहीं उठा रही है, और कदम उठाती तो हर जनता के लिए कार्य करती। और जनता कार्य करने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर महंगाई पे कंट्रोल करना, सभी को रोजगार देना, ये सबसे प्राथमिकता होती है। कहते हैं इलेक्शन भी इन्हीं नामों से जीती जाती है।